ग्रुप है फेथ और रिस्पॉन्सिबिलिटी रेडी रहे। नेक्स्ट। सभी भाई बहनों को ओम शांति। और हमारी टीम का नाम फेथ है। फेथ टीम के बिहाफ पे मैं सारे भाइयों और बहनों को, हमारे चेयरपर्सन साहब को और जूरी मेंबर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारे को आपने मौका दिया अपनी बात को प्रस्तुत करने का। मैं सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि फेथ टीम इस चीज़ के अंदर बिलीव करती है कि स्वर्णिम भारत को एस्टैब्लिश करने के लिए सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है फेथ इस बात के अंदर कि स्वर्णिम भारत को एस्टैब्लिश किया जा सकता है। और इसके लिए हमारी टीम ने, हमारी फेथ टीम ने एक एक्रोनिम को बिल्ड किया है। फेथ का नाम, फेथ टीम का मतलब है फुल्ली आर्मर्ड इंटेलिजेंस थ्रू हेल्थ एंड हार्मनी। और हम लोगों ने ये नाम थैंक यू वेरी मच, ये नाम हम लोगों ने इसलिए डिसाइड किया है क्योंकि हम बहुत भाग्यशाली हैं। हमारी टीम के अंदर स्पोर्ट्स गुरु हैं, हमारी टीम के अंदर हेल्थ गुरु हैं, स्टूडेंट्स हैं, अलग अलग फील्ड के बहुत सारी प्रतिभाएं हैं यहाँ पे। तो स्वर्णिम भारत के अंदर को एस्टैब्लिश करने के लिए इनके फील्ड्स के अंदर इनका जो पर्सपेक्टिव है वो एक एक करके हमारे टीम मेंबर्स आके सब लोगों को देंगे और बताएंगे कि उनके पर्सपेक्टिव के हिसाब से, उनकी फील्ड के हिसाब से किस चीज़ की ज़रूरत है स्वर्णिम भारत को एस्टैब्लिश करने के लिए। तो सबसे पहले मैं आमंत्रित करूंगा हमारी स्पोर्ट्स गुरु को। तो स्पोर्ट्स गुरु सबसे पहले बताएंगे किस चीज़ की ज़रूरत है। थैंक यू। ओम शांति ओम। मैं जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती हूँ बीइंग अ स्पोर्ट्स पर्सन, हेल्थ को। मैं चाहती हूँ कि यूथ जितना मेंटली स्ट्रांग रहे उतना फिजिकली। अब मेंटली वो कैसे स्ट्रांग रह सकता है जब तक उसके ब्रेन में प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन नहीं जाएगी, वर्कआउट नहीं करेगा, एक्सरसाइज नहीं करेगा। प्रॉपर तरीके से वो अगर सोचेगा नहीं तो प्रॉपर तरीके से वो काम कैसे करेगा। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को हैंडल करने के लिए उसको परफेक्ट बॉडी भी चाहिए। तो फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिकल फिटनेस इंपॉर्टेंट है एज वेल एज मेंटल फिटनेस। थैंक यू। अगली हमारी टीम मेंबर हैं, ये है हेल्थ गुरु। Om Shanti. I can speak better in English, so I'll continue in English itself. As our sports guru said, health and fitness is very important. But how do you think this health and fitness comes? When you're sick, what will happen? So, as being a pharmacist, I feel my role is to prepare and invent new medicines. Those are nothing but dua. But don't you think something is very important in dua? Sorry, those are the dua, the positive vibrations. I feel the dua which you give, the vibrations which you send out are even more powerful than the external medicines which you give. The wound which you get and the pain which you are feeling from inside, the whole world around you is painful. So, do you think the external medication can cure the sickness of the people? I don't think so. I feel the dua, the positive vibrations which you send to people are the most important in this whole world. And currently those are the things which are lacking in this current world. Everyone around you are feeling jealous about you, they are feeling ego about everything. So how do you think the world will get re-established? How do we think we get into a golden age? That is possible only through sending those good vibrations. And I think those good thoughts and vibrations are very important for establishing the new golden age. Thank you. Good morning, everyone. Myself, Durga Counter. As a student, the role and responsibility we hold to show is gratitude and faith towards ourselves. First, we should have faith in ourselves. Then the gurus, where they teach us moral values, and even our colleagues. Because faith is not only about कि एक ही इंसान पे हो, हमें हमारे आसपास की जो भी है, हमें हर एक इंसान के पास faith होना चाहिए. Because faith नहीं है तो we can't lead our life. So that really plays a very important role in each and everyone's life. We should build and encourage the inner capabilities in each and everyone and contribute for the golden age. I would like to say that youth's main aim is youth making and nation building. This is very important because our main aim, as you all are told, is golden age. The youth is playing the main role. So that is why for our nation building, we need all these qualities as faith, truth and everything. Thank you. Om Shanti everyone. आई एम रियली सॉरी, आई नो टाइम इज अप, हमारे मार्क्स कटेंगे उसके लिए, बट एक भाई ने और प्रिपेयर किया है, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इनको 10 सेकंड दिए जाएं प्लीज, 20 सेकंड। ओम शांति एवरीवन। आई हैव परस्यूड चार्टर्ड अकाउंटेंसी और आप सभी जानते हैं कि
चार्टर्ड अकाउंटेंसी में कितना ऑनेस्ट रहना ज़रूरी है, पॉजिटिव रहना ज़रूरी है एंड क्लियर रहना ज़रूरी है। तो इसके लिए रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी की युवा की मैं बात करूँ तो उसके लिए सबसे पहले उसको अपने आप को रीबिल्ड एंड रिजुनेट करना पड़ेगा और उसे एजुकेट अपने आप को सबसे पहले करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो ही एजुकेट नहीं होगा तो आगे जाके वो कैसे दूसरे को एजुकेट कर पाएगा। और इसके साथ मैं लास्ट में एक कोट बोलना चाहूँगा कि भरोसा भगवान पर तो है, जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे, भरोसा खुद पर है तो भगवान वही लिखेगा जो आप चाहोगे। ओम शांति। नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी और हैप्पीनेस रेडी रहें। Om Shanti. As you can know the topic, but dear all, our content is re-establishment. According to our group, re-establishment is a youth and youth is equals to a golden age. But how? As you can see, our role and responsibilities is to reconstruction. हम पैदा हुए, हम दोबारा पैदा नहीं हो सकते, बट हम अपने आप को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं अब अपने डेली रूटीन से, अपनी लाइफ से, अपने हर सिंगल मिनट से। रीअरेंजमेंट हम एक यात्री हैं, यात्री की तरह अपने यात्रा को हम यहाँ करने आए हैं। हम अपना जो बैगेज है, हम अपने बैगेज में लिमिटेड प्योर स्पिरिचुअल हैबिट्स को डालेंगे। रिन्यू करेंगे हम अपने आप को स्पिरिचुअल मेडिटेशन से, योगा से। ओम शांति से ओम शांति। एंड द लास्ट वन इज recreative our soul, our good habit in a right place and the right time. Please continue. ओम शांति। ये आप देख सकते हैं, रावण से राम। जैसे कि हमें वैल्यू मिली है रिस्पॉन्सिबिलिटी अर्थात जिम्मेदारी, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम हर एक रावण को राम कैसे बनाएं। सुप्रीम सोल की गाइडेंस के अंतर्गत हम ये कर सकते हैं। कौन कौन तैयार है इसके लिए? क्या सब इस यात्रा में शामिल हैं? सब साथ चलेंगे यूनिटी के साथ। ओम शांति। अंत में मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी, यहाँ पर बैठे सभी मान अनुभव ज्ञानी लोगों से, इनको मैं कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं बोलूँगी, बट हम यहाँ पे कोई बहुत बड़ी ज्ञान की बात शेयर नहीं करूँगी, बट यहाँ पे हम यूथ बैठी हुई है, उनको मैं बहुत एक माइनर चीज़ें शेयर करूँगी। ज्ञान का तो खैर कोई लिमिट ही नहीं है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। ओम शांति। शांति। फर्स्ट रोल एक युवा का एक दूसरे युवा के लिए कि उसको सपोर्ट करना, और मैं चाहती हूँ आप सब लोग हम लोगों को तालियां बजा के हम लोगों को चीयर अप करें। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट यूनिटी तैयार रहें। थैंक यू। सो वी आर गोइंग टू प्रेजेंट अ ड्रामा, अ स्मॉल स्टोरी, ओके, अबाउट द सोशल मीडिया। सो या लेट्स हियर इट आउट। अरे सुपरस्टार सुशांत सिंह राजपूत मर गया, सुसाइड कर लिया। हो यार, मैं तो इसको इतना फॉलो करती थी। तू क्यों इसके लिए उतना इसके लिए इतनी ओवर कर रही है? ये तो ऐसी कॉमन न्यूज़ है यार फिर भी मैं उसको बहुत फॉलो करती थी, मैं बहुत सालों से उसको बहुत फॉलो कर रही हूँ। इवन उसका वर्कआउट प्लान, उसके डाइट प्लान, उसकी फिजिक इतनी सही थी, और मतलब मैं बहुत टाइम से उसको बहुत लाइक करती थी। तब भी आजकल की यूथ में इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का है कहाँ? कोई गर्लफ्रेंड चली गई या किसी का लव टूट गया तो फिर मर जाएंगे, किसी का 10th या 12th पास फेल हो गया तो फिर मर जाएंगे। सब चीज़ के उनके सोल्यूशन है, तो मरना ही है। अरे ये दूसरी न्यूज़ देखो, यूक्रेन में क्या हो रहा है, ये वर्ल्ड में हो क्या रहा है, ये कैसे, कब तक ये सब चलेगा, कब ये सब खत्म होगा, कब हम एक पीसफुल लाइफ जिएंगे? ये इसका कोई सोल्यूशन है ही नहीं, मुझे तो लगता है, क्योंकि एक के बाद दूसरा। अब देखो यहाँ यूक्रेन की इशू चल रही है, अब दूसरी जगह ये सामने बाढ़ आई हुई है। नो प्रॉब्लम।
ये जो ड्रामा है ये तो चलता रहेगा, राइट? ड्रामा इज नथिंग न्यू। अभी आप लोग बोलेंगे कैसे न्यू, राइट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इन्होंने बताया सुशांत सिंह के बारे में, या फिर कोई भी जिनको हम फॉलो करते हो सोशल मीडिया, इसके पीछे ना एक रीज़न ये होता है कि ये लोग भेड़ चाल में चलते हैं, राइट? हम सुशांत सिंह को तो साइड में रखेंगे, मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की बात करूंगी जो सोशल मीडिया से कनेक्टेड है। तो इन लोगों के साथ प्रॉब्लम ये है कि एक कर रहे हैं तो दूसरे को भी करना है, और इनको लाइफ का रियल मतलब नहीं पता है, एंड दैट इज वाई दे आर ऑल आफ्टर लाइक्स एंड कमेंट्स एंड शेयर एक्सेट्रा, राइट? और इन सब के पीछे हम भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है, बिकॉज जो हम करते हैं वही हमारे साथ होता है, राइट? तो आज अगर इसको दुख हो रहा है कि इसका फेवरेट एक्टर अगर आज नहीं रहा है, तो उसके पीछे रीज़न है, राइट? जो उस बंदे को चाहिए था, शायद फेम चाहिए था, पैसा चाहिए था, राइट? वो हमने कुछ समय के लिए उसको दिया, बट कुछ समय बाद हमने उसको छोड़ दिया, राइट? अभी सेकंड चीज़ यहाँ पे ये है कि जैसे कुछ एक्टर्स होते हैं, इन लोगों को जैसे लाइफ का मतलब नहीं पता होता, इसके पीछे रीज़न भी ये है कि ये लोग स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़े नहीं है। अभी कुछ लोग बोलेंगे एक्टिंग से स्पिरिचुअलिटी का क्या लेना देना है? बहुत लेना देना है, राइट? अगर एक एक्टर इंजीनियर हो सकता है, मेडिकल हो सकता है, तो स्पिरिचुअल क्यों नहीं हो सकता? करेक्ट? तो स्पिरिचुअलिटी इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज स्पिरिचुअलिटी आपको साइलेंस से इंट्रोड्यूस कराती है, राइट? और साइंस जो है, साइंस हमें लाइफ के अलग मायने एंड फिजिक्स केमिस्ट्री सिखाती है। तो ये दोनों चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और आज की यूथ जितनी इंटेलेक्चुअल है, जितनी लॉजिकल है, उस हिसाब से हमें ये समझना पड़ेगा कि हमें ये ड्रामा ख़त्म करना है तो हमें यूथ तक जाके हमें उनको सिखाना पड़ेगा। और साइंस और स्पिरिचुअलिटी एक समान है, अगर वो एक साथ आते हैं तो ये पूरा ड्रामा चेंज हो सकता है और पूरी दुनिया चेंज हो सकती है, बिकॉज हम लॉजिकल है तो लॉजिकल चीज़ों को समझते हैं, राइट? तो हमें साइंस और स्पिरिचुअलिटी को साथ में लाना पड़ेगा, जिससे पीस एंड हार्मनी भी आएगी और लोगों को उसका वैलिड रीज़न पता होगा कि ये हो क्यों रहा है, राइट गाइज? तो आप सब मेरे साथ अभी एक चीज बोलेंगे कि भेड़ चाल को खत्म करना है। प्लीज से, भेड़ चाल को खत्म करना है एंड साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी को अपनाना है। ओम शांति। थैंक यू फॉर लिसनिंग। सो वन रिक्वेस्ट है, मेरी एक बहन है जो पोयम रिप्रेजेंट करना चाहती है आप सबके सामने, सो प्लीज अलाउ। Thank you, everyone. A youth should be a pride for a nation which is wide. Trying to overcome all the issues, youth will stop the corruption and misuse. They will create awareness for preserving nature. They will be responsible for now and future. Yuva know how important the education is, so let them study lifelong, please. Beware of all the tantrums in the nation. They will also generate new wonderful passions. एंड एक हमारे फैसिलिटेटर ने एक लाइन बोला कि यहाँ पे जो भी है ये एज से यूथ नहीं है, दे आर यूथ बाई देयर इन सेल्फ, सो या इनर सेल्फ्स, सो एन ओल्ड बिकम्स अ यूथ अगेन एंड हेल्प द सोसाइटी टू वैनिश देयर पेन्स। थैंक यू सो मच। ओम शांति। Om Shanti. I'm from Unity. Honorable Speaker Sir, Chief Guest, respected brothers and sisters. I am from Unity Group and my team suggested me, cooperated with some issues. I start. मंदिरों में हो तपस्या, इसका थीम है रीस्टैब्लिशमेंट। हमारे ग्रुप की थीम है रीस्टैब्लिशमेंट। मंदिरों में हो तपस्या, मस्जिदों में हो अजान। मंदिरों में हो तपस्या, मस्जिदों में हो अजान। कृष्ण की गीता ध्वनित हो, प्रेम से गूंजे कुरान। गीत गुरुद्वारे निनादित, गीत गुरुद्वारे निनादित, कह उठे गोविंद जय। घंटियां गिरजा घरों की, गा उठे भारत विजय। घंटियां गिरजा घरों की, गा उठे भारत विजय। हमारे ग्रुप ने बताया है कि युवा में पोटेंशियल हैं, वो विवेकानंद की तरह आध्यात्मिक होकर के एक स्वर्णिम भारत का रीइस्टैब्लिशमेंट कर सकता है और नेशनल बाउंड्रीज को क्रॉस करके एक कॉस्मोपॉलिटन
सोसाइटी को क्रिएट कर सकता है, जैसा कि हमारे भारत के प्रथम नोबेल लॉरेट रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी कविताओं में जिक्र किया है। प्रत्येक व्यक्ति का फर्ज है कि वह कुछ ना कुछ अपने जीवन में नियम बनाए। हमारे मित्र अमित साहू जी यहाँ पर उपस्थित हैं, जो हमें यहाँ तक लेके आए हैं। उन्होंने एक कहानी सुनाई थी, वो कहानी मैं नहीं दोहराऊंगा, लेकिन सभी के लिए नियम बनाना बहुत आवश्यक है। और हमारे 20,000 साल से प्रचलित योग विज्ञान, जिसमें आज तक कोई करेक्शन नहीं कर पाई साइंस, फिजिकल साइंस में लाखों करोड़ों करेक्शन हुए हैं, हो रहे हैं, आगे भी होंगे, लेकिन योग साइंस आज आपका भारत की जो उपलब्धि है, लीगेसी, एयरनेस जो भी है उसका हम रिस्पेक्ट करें, उसको फॉलो करें। एंड रीस्टैब्लिशमेंट ऑफ हार्मोनियस स्टेट ऑफ माइंड एंड ट्रांसफॉर्म द नेशन बेगिन विथ सेल्फ। आगे मैं राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की पंक्तियों को कोट करना चाहता हूँ। उन्होंने अपनी रश्मि रथी में लिखा है, झर गई पूंछ रोमांत झरे। हम जिस सोसाइटी से आए हैं वहाँ हम आदमी के रूप में जरूर हैं, लेकिन हमारी जो दशा है वो हम इस दिनकर जी के माध्यम से कह रहे हैं। झर गई पूंछ रोमांत झरे, पशुता का झरना बाकी है, बाहर बाहर तन सवर चुका, मन अभी संवरना बाकी है, मन अभी संवरना बाकी है। और मन केवल आप लोगों की इस आध्यात्मिक स्वभाव में सुधर सकता है। ओम शांति। ओम शांति। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि आजकल हम देखते हैं कि मतलब हम जो यंगस्टर्स हैं, हमारी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आती है ना, वी आर लाइक ये भगवान की वजह से हुआ है, इन्हीं की प्रॉब्लम है, टाइम अच्छा नहीं चल रहा, उन्हीं की प्रॉब्लम है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम यहाँ आते हैं, यहाँ मेडिटेशन करते हैं और अपने आप को एनर्जी देते हैं, मतलब वी आर गेटिंग बेटर, वी आर गेटिंग फिटर। तो जैसे डार्विन की थ्योरी है ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, इस टाइम पे हमें ये वही बना रहे हैं। मतलब हमें पता है कि ये कलयुग चल रहा है, आगे सतयुग आना है, तो उसके लिए हम प्रिपेयर हो रहे हैं। तो मतलब वी आर गेटिंग फिटर डे बाय डे बाय अटेंडिंग दिस क्लासेस, दिस एनर्जी। तो दिस इज अल्टीमेटली वी आर इन दिस जर्नी टू बी फिटर, ताकि हम ये सारी प्रॉब्लम्स फेस कर सकें, ताकि जब लास्ट में सिलेक्शन हो तो वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ही होगा। और लास्ट में मैं ये कहूँगी कि हम लोग जो भी काम करते हैं, वी विल ट्राई टू फाइंड सम शॉर्टकट। अगर हम अपने आप से एक प्रॉमिस कर लें कि वी हैव टू गिव आवर 100%, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम कंट्रीब्यूट ना करें। अगर मुझे कोई छोटा सा भी काम दिया है, आई एम गिविंग माई 100%, डेफिनेटली आई विल एड अप, डेफिनेटली, आई प्रॉमिस यू। कोई भी छोटा काम हो, अगर हम 100% दे रहे हैं, हम कहीं ना कहीं से कंट्रीब्यूट करेंगे ही करेंगे और बेटर होगा ही होगा। तो वी जस्ट हैव टू प्रॉमिस आवरसेल्व्स, बी 100%। थैंक यू। ओम शांति। Next, determination. ऑनरेबल स्पीकर, रेस्पेक्टेड जूरी मेंबर्स और प्यारे सांसद मित्रों, मैं प्रताप सिंह चौहान डिटर्मिनेशन पार्टी की तरफ से सभी हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को अभिवादन करता हूं। मुझे पता है हमारी जो पार्टी है उसमें बहुत कम संख्या में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, 25 की संख्या में, खड़े भी हो जाएंगे, और यहाँ पे 11 सहयोगी दलों ने मिलकर सरकार बनाई है। तो लेकिन आज हम युवाओं की आवाज़ आप लोगों के बीच अपनी इस पार्टी को बताने आए हैं, सरकार को बताने आए हैं। युवा सिर्फ ताली बजाने या झंडे उठाने के लिए नहीं होते हैं। युवा का मतलब उल्टा होता है वायु, और वायु जब अपने वेग से चलती है तो सब कुछ उखाड़ देती है। और भारत वो देश है जहाँ की आध्यात्मिक शक्ति से ऐसे युवा खड़े हुए और उन्होंने समय समय पर ऐसा काम भारत के लिए किया। उसमें चाहे भगत सिंह हो, शंकराचार्य जी हो, विवेकानंद जी हो, जिन्होंने पूरी दुनिया को युवाओं का मैसेज दिया। हम हालांकि सत्ता पक्ष की हम सभी पॉलिसीज का स्वागत करते हैं, उनको शुक्रगुजार हैं। जैसे उन्होंने फिट इंडिया की बात करी, पीस वालों ने स्पोर्ट्स की बात करी, अभी इन्होंने अग्निवीर स्कीम लेके आए, तो हम उनका शुक्रगुजार हैं। वो इतना अच्छा काम देश में कर रहे हैं, बट फिर भी हम अपने सांसदों की तरफ से उनका ध्यान कुछ मुद्दों की तरफ ले जाना चाहते हैं। हमारे अतिथि साहिब ने जिस तरीके से हिस्ट्री की तरफ
इशारा किया तो हम उनकी बातों से पूरे 100% सहमत हैं। हालांकि अभी सभी इन्होंने जितनी भी पॉलिसीज बोली हैं तो हमारे पास ज़्यादा बताने के लिए तो ये नहीं है कि भाई ये ऑलरेडी कर ही रहे हैं सारा कुछ, लेकिन जो सवाल हैं वो यही हैं कि अगर हम इतिहास में पूरी दुनिया की जीडीपी का 1/3 हिस्सा रखते थे, वर्ल्ड एक्सपोर्ट हमारा 30% के करीब था, और तभी पूरी दुनिया से लोग हमें लूटने के लिए आए, जिसे सोने की चिड़िया कहते थे, तो वो चीज़ें डिस्टर्ब हुई, उन्होंने बताया। और करंट सिनेरियो आज ये है कि हम देख रहे हैं, क्योंकि आज हम केवल ऐसा नहीं है कि हम इस हॉल में या इस देश में अकेले रह रहे हैं और हम अपने हिसाब से पॉलिसीज बना लेंगे और हम सरवाइव कर जाएंगे। आज पूरी ग्लोबल इकोनॉमी कनेक्ट हो चुकी है। अगर हमारे पड़ोसी मुल्क श्रीलंका में हम देखेंगे कि उनकी पूरी डेमोक्रेसी खतरे में है, उनका जो कर्ज है वो उनकी इकोनॉमी से ज़्यादा हो गया है। हालांकि हमारे देश का भी 120 लाख करोड़ का कर्जा हो गया है और इकोनॉमी 150 लाख करोड़ के आसपास है, तो 90% पे हम भी पहुंच गए हैं, तो उस तरफ भी हमारा इशारा है। और इसी विषय में हमारे जो साथी हैं वो कुछ पॉलिसीज की तरफ आपको इशारा करेंगे, तो आई विल हैंड ओवर टू राहुल। मैं राहुल मंडिल, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आप सभी को नमस्कार करता हूं। मेरा ऐसा मानना है कि हमको कुछ भी चेंज करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि सब कुछ पहले से ही पुनर्निर्धारित है। जैसा हो रहा है वो सबके कल्याण, वो जैसा हो रहा है वो भी कल्याणकारी है और जो होगा वो भी कल्याणकारी ही होगा। क्योंकि अभी तक हमको है ना एक कोई ना कोई सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। बिना सपोर्ट के मेरा ऐसा मानना है कि कोई आगे बढ़ ही नहीं सकता, और आज तक हमने जो भी सपोर्ट लिया हुआ है वो किसी न किसी देदारी से ही लिया हुआ है। तो अब मुझे ऐसा मानना है कि अगर हम शिव बाबा से सपोर्ट लेंगे तो हमारा हर काम अच्छा ही होगा। इसके लिए मैंने कविता भी लिखी है, जब डूब रही थी कश्ती और दूर था किनारा, तब भी भरोसा सिर्फ बाबा पर था हमारा। तो इसी पंक्ति के साथ मैं विराम लेता हूँ। ओम शांति। एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मैं एनवायरनमेंट के टॉपिक पे बात करना चाहूँगी। एज अ यूथ इट्स माय रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ माय एनवायरनमेंट। जैसे हम इस जगह पे आए हैं या हम कहीं भी जाते हैं तो हम पसंद करते हैं कि वो जगह साफ़ हो, सुथरी हो, कचरा ना हो, मच्छर ना हो, पानी इकट्ठा ना हो। तो क्या ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि हम ही छोटे छोटे स्टेप्स लेकर अपने आसपास अपनी खुद की स्वच्छता मेंटेन करें और सबको ये मैसेज अपने आचरण से करके दिखाएं। तो एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं एनवायरनमेंट को फोकस करती हूँ कि हम ऐसी चीज़ों का उपयोग ना करें जो आगे चलकर हार्म करने वाली है, प्लस उन चीज़ों को ज़्यादा अप्रिशिएट करें, उन स्टार्टअप्स को, उस बिज़नेस को, उस आइडियाज़ को, ऐसी चीज़ों को हमें अपनाना चाहिए जहां हम बेटर ज़िंदगी और एक अच्छा एनवायरनमेंट के साथ जी सकें, और ऐसा ही बिल, लॉस और सब्सिडी पास हो गवर्नमेंट की तरफ से। थैंक यू। Hello, I'm Dr. Krishna. I will talk about spirituality. Spirituality is the core of humanity. And as if I combine my spirituality with my duty, as it's my duty to treat people. But if I will think that I am born to help people, to treat people, then this world would be a great place. And plus, I will be imparting good vibration that will lead to healing of the world. In the end, I want to say few lines. As my group is determination, तो 4 पंक्तियां। दृढ़ निश्चय कर ले तू, कोई झुका नहीं पाएगा। ऊंचे से ऊंचा सीना तेरे तेज के आगे नतमस्तक हो जाएगा। डरना मत, घबराना मत, ये राह है सच्चाई की। चलते रहना, रुकना मत, ये राह है तेरी भलाई की। तू कर्म कर, वो स्वर्णिम युग भी आएगा, जब देश विदेश स्वर्णिम भारत कहलाएगा। ओम शांति। Last one, simplicity. ओम शांति। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं हनी बंसल सिंप्लिसिटी ग्रुप की ओर से अपने ग्रुप का प्रेजेंटेशन रखने की अनुमति चाहती हूँ, और अपने साथी सारे भाई बहनों को अप्रिशिएट करती हूँ जिन्होंने अपने सारे थॉट्स, अपने विचार इतने सुंदर तरीके से प्रस्तुत किए। पर अंत में मैं सबके विचारों को एक कंक्लूड करना चाहती हूँ। स्वपरिवर्तन मतलब
तभी विश्व का परिवर्तन। पर ये परिवर्तन करना कैसे है? सबने बोला सब परिवर्तन करते हैं तभी विश्व परिवर्तन होगा, पर परिवर्तन करना कैसे है? परिवर्तन के लिए सबसे पहले हमें बेस्ट होना होगा। अब बेस्ट क्या चीज़ है? B फॉर बिहेवियर, E फॉर एनर्जी, S फॉर संस्कार एंड T फॉर थॉट्स। तो अपना जब बेस्ट रहेंगे, तब जब हम पॉजिटिव रहेंगे, फोकस्ड रहेंगे, कंसंट्रेटेड रहेंगे सब चीज़ों में, तभी अपना बेस्ट हो पाएंगे। अब अपने परिवर्तन को पहचानने के लिए सबसे पहले हमें खुद को पहचानना ज़रूरी है। हमारे अंदर कौन सा बीज है, हमारे अंदर किस तरीके की एक सैपलिंग है जिसको हमें नर्चर करना है, जिस तरीके से हम रोल मॉडल बन पाएँ किसी के लिए, जिस तरीके से हम किसी को प्रेरित कर पाएँ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। तो अपने माइंड को फोकस, अपनी थॉट्स को फोकस, अपने थॉट्स को पॉजिटिव रख के, मेडिटेशन करके, इन्हीं सब चीज़ों के थ्रू हम आगे बढ़ सकते हैं अपनी ज़िंदगी में। हम मूवीज़ देखते हैं, मूवीज़ में, फिल्म्स में हमें सब हीरोज़ की एक्टिंग बहुत अच्छी लगती है। वो हीरोज़ भी किसी मेहनत को करके उस प्लेटफॉर्म पे आकर के तभी वो एक्ट आउट कर पाते हैं। उन्होंने भी पीछे हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क किया होता है। इसी तरीके से उस हीरो को अपनी ज़िंदगी में बनने के लिए हमें भी वो हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क करना है। तो उसके लिए अपना बेस्ट बनना है। बिहेवियर, एनर्जी, संस्कार और अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखना है। मैं चाहती हूँ मेरी बहन, साथी बहन आकर के अपने थॉट्स और शेयर करें। ओम शांति एवरीवन। मैं सिस्टर कविता बहन गुड़गांव से, और मैं अपने ग्रुप सिंप्लिसिटी को रिप्रेजेंट कर रही हूँ एक सोल के थ्रू, बिकॉज हम बाबा के ज्ञान में सोल को सीखते हैं कि वी आर अ सोल। तो मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करूँगी सोल को सिम के थ्रू, जहाँ मेरे 2 फ्रेंड्स साथ में हैं। ब्लैक मीन्स ब्लैक सिम, वाइट मीन्स वाइट सिम। ब्लैक मीन्स नेगेटिव एनर्जीज, बिकॉज आज की डेट में युवा पीढ़ी में हमने जो देखा है नेगेटिव एनर्जीज बहुत ज़्यादा है। उन चीज़ों को कम करने के लिए हमें सोल को सुप्रीम सोल से कैसे कनेक्ट करना है, देन फिर दुनिया में कैसे रिफ्लेक्ट करना है, वो हम सिम के थ्रू शो कर रहे हैं यहाँ पे। ब्लैक सिम मीन्स नेगेटिविटी। जब हम बाबा से कनेक्ट होंगे, यानी सोल को कैसे सिंप्लिसिटी मीन्स सरलता से कैसे कनेक्ट करेंगे, वो हमें युवा पीढ़ी को सिखाना है। उसके लिए हमें एक रिफ्लेक्शन चाहिए जो हमारी पॉजिटिव एनर्जीज दुनिया में दिखाई देगी। तो इस तरीके से हम पॉजिटिविटी में चेंज हो जाएंगे, यानी ब्लैक सिम वाइट में चेंज हो जाएगी और नवयुग आ जाएगा। ओम शांति। मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ। जरा मुस्कुरा के देख, दुनिया हंसती नजर आएगी। सुबह सैर कर के तो देख, तेरी सेहत ठीक हो जाएगी। व्यसन छोड़ के तो देख, तेरी इज्जत बन जाएगी। मेहनत करके तो देख, तुझे अच्छी नींद आएगी। माता पिता की बात मानकर तो देख, तेरी जिंदगी सवार हो जाएगी। ओम शांति। अंत में मैं सभी से ये कहना चाहती हूँ कि युवा तू देश की शान, तू अपनी शक्ति पहचान। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। सभी ने बहुत ही उमंग उत्साह से, बहुत क्रिएटिविटी से और अंदर की अपनी भावनाओं से